Namaskar and a very warm welcome to all my aspirants, friends, and others. And I will just request you to please have a focus along with me on the question and the interpretation so that we can get the best out of it. Wherever you feel like you can share something, you can put some idea. I will be more than willing to learn and also to have an interaction on those ideas. We have been doing this series, which is helping us to understand and to appreciate the demand for ethics, case studies, and other general studies aspects. It is making us, all of us, a little humble also. That is what we have been experiencing through our daily behavior, which is very difficult otherwise when we talk about other kind of theoretical aspects. So let's appreciate the plus points. Let's all try to learn. Question number 8 says that you are an IFS officer who heads a diplomatic mission in a European country. You live with your wife and children. One of my students already posted over there, but he is not an IFS officer, so I'm just trying to visualize. Your parents and few of your relatives are also visiting you for a vacation. He also asked me to come for a vacation, so but couldn't materialize as of now. The country is known for scenic mountains and its popular destination for tourists. ये भी बात बिल्कुल सही है, वो जहां पर है ये एकदम ऐसा ही है. In an unexpected turn of events, the country in which you are posted has been attacked by its neighbor. अब ये तो नहीं होने जा रहा. Due to some unresolved bilateral issues, all the major transportation channels have been adversely impacted by the attack. Flights have been cancelled and airspace of the country has been declared unsafe for commercial aircraft. You have received an urgent communication from New Delhi to asking you to prepare for evacuation of Indians from the besieged country. जितना मैंने केस स्टडी पढ़ी, मेरे माइंड में जो पिक्चर बन रही है, मैं सोच सकता हूँ यूक्रेन हो सकता है. यू हैव बीन इन्फॉर्म्ड दैट a friendly neighboring country of India has sought India's help to evacuate its citizens. नेपाल ने भी बोला होगा इंडियंस को कि भाई मेरे लोगों को भी वहां से आप इवैक्यूएट कर दो. Due to war, only a limited number of people can be evacuated in one go, and multiple rounds would be required for evacuating everyone. You have identified following groups of people who are to be evacuated. You, your wife, children, and parents, diplomatic staff, Indian tourists, Indian students, a film crew, actors who have been shooting a film in the country, biggest name of Bollywood, citizens of friendly neighboring country that has requested India's help. As a civil services officer of the state, what would be the order in which you would evacuate these people and why? Give justifications. तो अब ये बड़ा ही मतलब अच्छा एक स्मार्ट क्वेश्चन है. इंटरव्यू में भी इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं. तो अब यू, यूर वाइफ, चिल्ड्रन, पेरेंट्स एंड रिलेटिव तो पहला आउट ऑफ द वे हो जाता है. अगर उसके अंदर ओल्ड मैन और चिल्ड्रन या फिर वनरेबल सेक्शन या वुमेन नहीं है तो पहला वाला आउट ऑफ द वे हो जाता है. डिप्लोमेटिक स्टाफ एट द मिशन, ये तो बाद ही में आएगा, इसका मतलब ही नहीं है. इंडियन टूरिस्ट विद इन द कंट्री विजिटिंग दैट कंट्री ऑल्सो वुड हैव टू बी सेग्रीगेटेड. कैसे ग्रुप्स हैं, क्या है, वो देखा जाएगा. इंडियन स्टूडेंट स्टडिंग इन द कंट्री इज अ प्रायोरिटी. ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो सकते हैं, वनरेबल हो सकते हैं, हो सकता है उनको खाना भी ना मिला हो बहुत टाइम से, हो सकता है वो चल के आ रहे हो, कुछ भी हो सकता है. फिल्म क्रू एंड एक्टर्स दे कैन लिटिल वेट. उसमें भी अगर ओल्ड नहीं है और उसके बाद वनरेबल सेक्शन नहीं है तो ये सबसे पहली प्रायोरिटी नहीं आएगा. सिटीजन ऑफ फ्रेंडली नेबरिंग कंट्री दैट इज रिक्वेस्टेड फॉर इंडियाज हेल्प, ये भी प्रायोरिटी होगा. तो यानी कि सबसे पहले अगर हम सोचेंगे तो इंडियन स्टूडेंट्स के साथ साथ आप सिटीजन ऑफ नेबरिंग कंट्री को पहले वैल्यू दोगे. उसके बाद आप इंडियन टूरिस्ट और जो क्रू एंड एक्टर्स है उसके बाद वो इंडियन टूरिस्ट के बाद इंडियन टूरिस्ट पहले आने चाहिए, उसके बाद क्रू आना चाहिए, एंड देन फाइनली यू कैन गो फॉर डिप्लोमेटिक स्टाफ एट द मिशन, लास्ट में होना चाहिए. उससे पहले यू, यूर वाइफ, चिल्ड्रन, पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स, उससे करके आप जस्टिफाई कर दोगे. यानी कि आप इसको थोड़ा सा ट्वीक भी कर सकते हो क्योंकि ये कोई ऐसा ऑर्डर नहीं है कि इसमें हायरार्की. लेट्स मूव. अब देखते हैं कि हमने इसको कैसे हैंडल किया. तो जस्टिफाई इंश्योर दैट ह्यूमन राइट्स एंड सेफ्टी ऑफ ऑल इंडिविजुअल इज मेंटेन, बिल्कुल सही बात है. सेफ इवैक्यूएशन बाय इंडिया वर सीन ड्यूरिंग रशिया यूक्रेन वॉर, इजराइल हमास अटैक्स इंडियन सिटीजन एंड द डायस्पोरा अब्रॉड. अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट. अकाउंटेबिलिटी की जगह आपको कहना चाहिए सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी. सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि भाई वो इसलिए कर रहे हैं कि मुझे जिम्मेदार ठहराया जाएगा. वो इसलिए कर रहे हैं, ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी है. तो वो एंगल आना चाहिए, पर ठीक है आप ट्राई कर रहे हो. फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द ऑर्डर, डेटा ऑफ पीपल, साइज ऑफ ग्रुप, एरिया एट हाई रिस्क फर्स्ट, रॉबस्टनेस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान. अब ऑर्डर आपने क्या बोला, इंडियन स्टूडेंट्स, ठीक है, इंडियन टूरिस्ट, फिल्म क्रू, फैमिली मेंबर,
अच्छा, फैमिली मेंबर क्यों पहले आएंगे भाई? और सिटीजन ऑफ फ्रेंडली नेबर में भी तो कुछ ओल्ड और न्यू हो सकते हैं, तो आप उसको ट्विस्ट कर सकते हो, ये बाकी ठीक है। चलिए आगे। डिप्लोमेटिक स्टाफ एंड माई सेल्फ इन द लास्ट बिकॉज द नेसेसिटी फॉर प्लान सक्सेसफुल एंड सेफ इवैक्यूएशन भी है, साथ में आपको वहां की जानकारी है, आप एक ट्रेंड पर्सनल हो, यू आर देयर फॉर अ स्पेशल पर्पस, तो नेचुरली मतलब नहीं बनता। फैमिली मेंबर्स आपके साथ हैं जैसा आपने बोला, रिलेटिवली सेफ एंड ऑल्सो इंपॉर्टेंट इमोशनल सपोर्ट, अरे आप दो रहे हो, इमोशनल सपोर्ट ले थोड़ी ना रहे हो, तो इसलिए फैमिली मेंबर्स का बात, इट माइट बी पॉसिबल दैट दे वुड बी रेडी टू लीव विदाउट मी। अच्छा जी, ये क्या बात हुई? नहीं, जैसा आप बोलोगे आप ऑफिशियल, फिर वही बात आ गई। ये मुझे याद आता है वही वाली केस स्टडी जिसके अंदर वो आईएएस ऑफिसर की वाइफ को जॉब मिलने वाली थी, और फिर तरह तरह का हमने हाहाकार मचाया था कि भाई उसकी नौकरी छुड़वा दें, कि वो फेमिनिज्म आ जाए, ये उसी के, ये जो लास्ट पॉइंट आया कि दे वुडेंट बी रेडी टू लीव विदाउट मी, मतलब इंडिया इज अ फैमिली यूनिट, लेकिन फिर भी given the capacity of planes, Indian citizens in neighbor countries will be given priority and would ensure quick evacuation for all। ठीक है, आपने कोशिश अच्छी की, लेकिन और थोड़े कीवर्ड्स आ सकते थे, थोड़े से और सिलेबस को आप इसको लिंक करके कर सकते थे। सो बीइंग एन आईएएस ऑफिसर इन दिस स्केल, आई विल इंश्योर दैट आई यूज माय कंसाइंस, माई कंडक्ट रूल्स। एक तो ये बड़ा मतलब, ठीक है, आपकी कंसाइंस क्या, आप बोलोगे कि जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स है मैं वो फॉलो करूंगा। माई कंसाइंस क्या होता है, मान लो अब, मतलब ये तो ज्यादा पर्सनल नहीं लेना है, जब तक जरूरत नहीं है, आपके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं उठा रहा, लेकिन आप कंडक्ट रूल्स, माई कंडक्ट रूल्स नहीं, जो सर्विस के कंडक्ट रूल्स है, जो जो ऑपरेशन के कंडक्ट रूल्स होने चाहिए, तो आप इस बात को अच्छा लिखते हैं, आपकी इस बात को अप्रिशिएट किया जाना चाहिए कि भाई इंटीग्रिटी ऑफ माई सर्विस एंड कंट्री, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन कोई डाउट नहीं कर रहा है, बिना डाउट के आप बहुत ज्यादा इस बात पर एम्फेसिस मत कीजिए। इंडियन टूरिस्ट विजिट द कंट्री, अब ऐसा है, दे इंक्लूड वुमेन, चाइल्ड, ओल्ड एज पीपल, मेडिकल टूरिस्ट टू रिक्वायर अर्ली इवैक्यूएशन इन केस दे आर लेट इवैक्यूएशन इट माइट क्रिएट, बात ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो इन्होंने जैसे एक्सप्लेन किया, सो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने पढ़ा उसके अंदर थोड़े से और पॉइंट ऐड हो सकते थे, दिस इज अप्रिशिएटेड। इंडियन स्टूडेंट्स, तो इवैक्यूएशन उनकी भी रिक्वायर्ड है, बिल्कुल सही बात है, सेकंड पॉइंट भी मानता हूँ, लेकिन इसके अंदर भी और थोड़े आप, यानी कि ये आप कह सकते हो इम्पैथी है, फिर उसके बाद जो है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है, फिर उसके बाद आप मोरल, या ऐसे करके आप जो स्टैंडर्ड यूनिवर्सल की वैल्यूज है वो ला सकते हैं। चलिए आगे। दे आर पब्लिक फिगर्स, एनी फिजिकल हार्म टू देम विल क्रिएट सोशल मीडिया ट्रोलिंग। अच्छा, अरे सबसे पहले तो वो इंसान है, वो मर गए तो उनके परिवार को, देश को नुकसान है, हम सबको, मतलब इंसान है, तो ट्रोलिंग की चिंता मत करिए। ट्रोलिंग कोई चीज हमारे लिए वो नहीं कर सकती कि ट्रोल होगा इसलिए हम करेंगे, तो ये जरा, इससे आपकी पूरी की पूरी जो आंसर है, पूरा जो केस स्टडी है, उसका कम से कम 1 से 1.5 नंबर कट जाएगा। फ्रेंडली नेबर कंट्री सिटीजन एज ए पैक्ट ऑफ सॉल्व, इसमें भी अगर ओल्ड हुए तो, इसमें ओल्ड और वुमेन हुए, फिर कहाँ जाएंगे बच्चे? सिर्फ अपने टूरिस्ट में यहाँ नहीं हो सकते, तो ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया। आई विल मेक देयर इवैक्यूएशन बिफोर मी, अरे बिफोर मी क्या हो सकता है ना, जहाज में एक सीट और भी हो आपके लिए, ये थोड़ी ना आप सबको भेज दोगे जहाज में एक सीट है, फिर भी आप बोलोगे तुम जाओ, जहाज को दोबारा भेज देना, मैं अगली बार आऊंगा अलॉन्ग विद दैट। तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिकल लिखिए, प्रैक्टिकल थिंग्स मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। एंड इन द लास्ट आई विल डू द इवैक्यूएशन ऑफ माई वाइफ, पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स अकॉर्डिंग टू द डिप्लोमेटिक प्रोसीजर। अब इनके लिए डिप्लोमेटिक प्रोसीजर क्यों आया? यानी हमारा खानदान खुद का होना है तो सजा हो गई, बीवी डिवोर्स जरूर दे देगी इस बात के ऊपर, और कोर्ट भी बोलेगा हाँ ये मेंटल क्रूअलिटी है, तो अपने परिवार को भी कम से कम वो वैल्यू, वो स्थान दीजिए जो उसके लिए बहुत जरूरी था, तो इसलिए हम ऐसा नहीं कह सकते। रिगार्डिंग में यस सर। कमिंग टू द नेक्स्ट वे, इसमें स्टेक होल्डर बनाया इन्होंने, यानी कि हमें मॉडल को बरकरार रखना चाहिए, इस केस स्टडी से ये प्रूव होता है, तो तोड़ा नहीं। स्टेक होल्डर डिप्लोमेटिक स्टाफ है, फिल्म क्रू है, इंडियन स्टूडेंट्स है, सिटीजन ऑफ फ्रेंडली कंट्री है, आईएफएस है, मी विद माय वाइफ, चिल्ड्रन, पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स, डिप्लोमेटिक मिशन। इंडियन डिप्लोमेटिक मिशन हैव शोकेस्ड प्रोएक्टिवनेस इन रेस्क्यू ऑपरेशंस ड्यूरिंग क्राइसिस गल्फ वॉर। देखो अब दिस केस स्टडी कैन स्कोर मोर मार्क्स इन द प्रीवियस वन। आपने इजराइल हमास लिखा, किसी ने यूक्रेन लिखा, ये सीधा गल्फ वॉर तक पहुंच गए, यानी कि जेन्युइन इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की, और वो नहीं लिखा जो सब लिख रहे हैं, इन्होंने लिखा बाद में ये यूके रशियन, लेकिन ये जो गल्फ क्राइसिस है या फिर ऑपरेशन गंगा है, या जो थोड़ा सा लेसर नोन लिखते हैं, नंबर ज्यादा आ जाते हैं, क्योंकि एग्जामिनर भी चेक करके बस आगे जा रहे हैं, एग्जामिनर इज ऑल्सो नॉट सिटिंग ऑन द क्वेश्चन एंड वाह 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 वाह, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। चलिए, वैल्यू
टू वैल्यूज टू बी कंसिडर्ड फॉर ऑर्डर ऑफ इवैक्यूएशन। देखो, ऑब्जेक्टिविटी इन सेग्रीगेटिंग बहुत अच्छा तरीका है, इम्पैथी जैसा मैंने बोला, सेल्फलेस एटीट्यूड, परसुएशन, कोऑपरेशन। यानी जो इससे पहले वाली केस स्टडी जो डिटेल में एक्सप्लेन कर रही थी, इन्होंने एक माइंड मैप बनाकर वो सारी बात कर दी। पहले वाली केस स्टडी के अंदर हम वहां तक नहीं पहुंच पाए, पेनेट्रेट ही नहीं कर पाए। तो एज ए सिविल सर्विस ऑफिसर, इंडियन स्टूडेंट्स, टूरिस्ट, सिटीजन ऑफ फ्रेंडली नेशन, फिल्म क्रू, माई वाइफ, चिल्ड्रन, पेरेंट और डिप्लोमेटिक स्टाफ, तो सीक्वेंस इन्होंने भी वही बनाया। लेकिन इसके ऊपर जो उन्होंने माइंड मैप बनाया और जो बिगनिंग की, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। अब इन्होंने उसको एक्सप्लेन कर दिया। इंडियन स्टूडेंट्स, यंग डेमोग्राफी, रिप्रेजेंट द फ्यूचर ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग वॉर। सो लॉजिक भी दिया, उनको छुड़वाया, यानी उनको भेजा। इंडियन सिटीजन टूरिस्ट, प्रेफरेंस दिया सिटीजन ऑफ फ्रेंडली नेशन से पहले। क्यों? क्योंकि मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने सिटीजन को सेफ गार्ड करने के लिए। फिर सिटीजन ऑफ फ्रेंडली नेशन, इंडिया का सॉफ्ट पावर स्टेटस है, लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ है, यूक्रेन रशिया वॉर के टाइम का अगर हम बात करें। फिल्म क्रू एंड एक्टर, उनको अकोमोडेशन दे दिया, ये बहुत अच्छी लाइन लगी, और उन्हें ब्रीफिंग दे दी इंडिया के स्टैंड की कि वॉर में क्या हो रहा है। उसके बाद मीनवाइल जो उनकी एक्सपर्टीज है और जो एक्सपीरियंस है उसको इंडियन डिप्लोमेसी के कॉन्टेक्स्ट में यूज भी किया। आई रियली अप्रिशिएट, दिस ऑल्सो गुड पॉइंट। म्यूजिक म्यूजिक बना दिया, ये सब चीजें कर दी, नॉट अ बैड आइडिया। माई वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट एंड रिलेटिव वुड बी रेस्क्यूड as they are normal citizen and not in service, and so the other diplomatic staff. Lastly, diplomatic staff and me, they would loot the country. As being civil service officer, it becomes duty. सही बात है। I have to brief the whole situation to MEA and subsequent to NSC, ठीक है ना, National Security Council. It became important that all eyes ears on ground should be contact until the last of the evacuation mission. It is important for country's future. ठीक है, I think ये केस स्टडी ने पुराने सारे एलिमेंट्स को बहुत ही अच्छे से पुटअप किया, सो वी कैन रियली अप्रिशिएट दिस। अब हम यहां देखते हैं। अब देखिए, केस स्टडी हाइलाइट्स द डिप्लोमेट डिलेमास फेस्ड बाय सिविल सर्वेंट्स इन परफॉर्मेंस ऑफ देयर ड्यूटी। पहले केस स्टडी पर भी एक लैंडमार्क एलिमेंट दिया कि केस स्टडी क्या कह रही है। इन दिस केस स्टडी, इवैक्यूएशन ऑफ पीपल ड्यू टू नियर इन द कंट्री हैज लेड टू यूटिलाइजेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। वहां भी एक पॉइंट बता दिया। स्टेक होल्डर हमने भी बताया, इन्होंने भी बताया। चलिए, अब उन्होंने एथिकल इश्यू क्या बनाया? प्रायोरिटी, पहली बात। तो बेस्ड ऑन क्लास, फिल्म क्रू, एज, स्टूडेंट्स, फ्रेंडली रिलेशन, पर्सनल वेलफेयर वर्सेस पब्लिक वेलफेयर। ये पॉइंट बहुत अच्छा लिखा, हमने भी ये किया, लेकिन हमने ये पॉइंट नहीं लिखा। पब्लिक वर्सेस प्राइवेट एथिक्स, केयर एंड लव फॉर द फैमिली वर्सेस कंपैशन एंड ड्यूटी टुवर्ड्स पब्लिक। जहां हमारी एक केस स्टडी में हमने अपनी फैमिली को कंपैशन नहीं दिया, हम उससे अनफिट हो जाते हैं। कंपैशन फैमिली को भी चाहिए। Limited resources of the operation hinder speed and risk. Longer the people stay back, longer the risk. कितनी सिंपल बट फंडामेंटल बात लिखी। Impact of the war on nations, fighting as well as other stakeholders, ये भी एक एथिकल इश्यू है। Impact on infrastructure disruption, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा भी था केस स्टडी में। Teleological school and justify means, ये एक बहुत ही यूनिक और अलग से पॉइंट लिखा गया, जितनी दूर तक हम नहीं पहुंच पाए हैं। तो वॉर ही क्यों हो रहा है, उस पर भी उन्होंने क्वेश्चन किया। एंड कैटेगोरिकल, ये जो आपका कैटेगोरिकल इम्प्लीकेशंस नहीं है, ये किलिंग, मिजरी, एक्सेट्रा। इमैनुअल कांट से कांट पहले इंपरेटिव, हाँ इंपेरेटिव, हाँ हाँ इम्पेरेटिव। इंपेरेटिव इम्प्लीकेशन काट के इंपेरेटिव लिखा गया। यानी कि ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में फिर देखो बताया, पहले टूरिस्ट, क्योंकि होटल में रह रहे हैं, आउट हाउसेज में रह रहे हैं, पहले उन्हें एजुकेट किया जाएगा बिकॉज दे हैव एक्सेस टू लिमिटेड रिसोर्सेज एंड दे हैव नल नॉलेज, नील नॉलेज कहना चाहिए, ऑफ देयर, ऑफ द कंट्री और ऑफ द सिटी। बिल्कुल सही बात है। सेकंड, स्टूडेंट्स वुड बी गिवन प्रायोरिटी बिकॉज स्टूडेंट्स ऑलरेडी लिव ऑन लिमिटेड रिसोर्सेज, ये भी बात बिल्कुल सही है। थर्डली, सिटीजन ऑफ नेबरिंग कंट्री बिकॉज इट विल हेल्प मेंटेन इंडिया हैविंग ए गुड इमेज एंड रिलेशंस। फिर बॉलीवुड एंड फिल्म क्रू, as they are relatively rich, they can survive for longer. Then finally, in the last tranche, staff and my family would be evacuated. This is because staff enjoys diplomatic immunity and also embassies और missions are not attacked. ये point भी बताया कि भाई वहां तो अटैक ही नहीं होता है, तो इसलिए वो झेल सकते हैं, रुक सकते हैं। Thereafter, looking at fulfillment of operation, as an IS officer, I would be the last to evacuate. This is in accordance with what JFK said. Ask not what your country can do for you, but rather what you can do for your country. So I think amazing efforts by all of you and an amazing experience of understanding
and hopefully you are going to bring the same commitment and the level in the next case study which you will be taking up in the next assignment. रश्मि एक आईपीएस ऑफिसर हैं, पोस्टेड एज एसपी लॉ एंड ऑर्डर डिस्ट्रिक्ट हैज हिस्ट्री ऑफ कम्युनल क्लैशेस ड्यूरिंग ए कल्चरल इवेंट. पॉलिटिकल लीडर ने कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स बोले रिलीजन ऑफ अदर कम्युनिटी के लिए दैट कैन पोटेंशियली हार्म कम्युनल हार्मनी इन द डिस्ट्रिक्ट. Representatives of the aggrieved community met Rashmi with their complaint. An FIR was registered in the matter and the police department promptly started an investigation. Investigation से पता लगा कि accused political leader ने charges deny कर दिए. उन्होंने कहा कि वो अपना freedom of expression का right use कर रहे थे, कोई intention नहीं था. Community was not satisfied और उन्होंने कहा एक strict action ली. अगले दिन एक वीडियो वायरल होता है जिसमें पॉलिटिकल लीडर देखे जाते हैं कि वो फिर से डेरोगेटरी रिमार्क बोल रहे हैं और रश्मि को सस्पेक्ट है कि वीडियो वायरल अगर इंटरनेट के ऊपर हुआ है तो डॉक्टर्ड है और किसी ने मिस्चीवली उसको एडिट करके ऐसा बना दिया है ताकि वो खतरनाक बन जाए. वीडियो से कम्युनल टेंशन बढ़ी. पॉलिटिकल लीडर एक इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटी से हैं और उनकी कम्युनिटी ने उनको पूरा सपोर्ट दिया. लोकल इंटेलिजेंस ने वार्निंग दी कि कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं जो इस अपॉर्चुनिटी को यूज करके कम्युनल राइट करना चाहते हैं और सारा का सारा मैटर पॉलिटिसाइज हो जाता है और नेशनल मीडिया भी उसको कवर करती है. अब क्वेश्चन उठता है व्हाट डिफरेंशिएट्स हेट स्पीच फ्रॉम ए फ्री स्पीच. बहुत अच्छा क्वेश्चन. व्हाई डज सोशल मीडिया हैव वेरी स्ट्रांग इन्फ्लुएंस ओवर एक्शंस एंड थॉट्स ऑफ इट्स यूजर. जैसा अभी हमने पुरानी केस स्टडी में पढ़ा, हम में से ही किसी ने यह भी बोला था कि भाई अगर ऐसा नहीं करोगे तो ट्रोलिंग हो जाएगी. तो जो बी स्टेटमेंट है वो हमें बताता है कि कितना जबरदस्त इंपैक्ट हमारे माइंड पर पड़ता है. व्हाट इज द सुटेबल मोस्ट सुटेबल रिकोर्स कोर्स ऑफ एक्शन फॉर रश्मि. चलिए देखते हैं हमने इसको क्या एक्शन लिया. हेट स्पीच वर्सेस फ्री स्पीच. हेट स्पीच इज नॉट ए फंडामेंटल राइट और फ्री स्पीच इज पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट. क्रिएट्स एनिमिटी, एक्सप्रेस ओपिनियंस एंड व्यू पॉइंट्स, वोट बैंक पॉलिटिक्स, क्रिएट्स मोर डिवाइड और इम्पैक्ट फॉर इक्विटी. लेकिन जब हम बात करते हैं एथिक्स की तो हेट स्पीच का कोई भी मोरल स्टैंड नहीं है. वो इमोरल है, वो इनसेंसिटिव है. आपको एथिकल जो फ्रेजेस हैं और जो एथिकल टर्म्स हैं उनको भी आपको वर्सेस में लेके आना चाहिए. सोशल मीडिया का स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है क्योंकि एक वर्चुअल डिजिटल स्पेस बना. चलिए आगे चलिए, आगे चलिए. कैन यू मूव फॉरवर्ड प्लीज. एनोनिमिटी है, अपने ओपिनियन आप एक्सप्रेस करते हैं लेकिन पर्सनल डिटेल्स नहीं, लेकिन पता तो लगता है किसने लिखे. मतलब ठीक है, आपके पास एनोनिमिटी है. सोशल मीडिया का बेस है, एक्सपेंडेड है, पेनिट्रेशन ऑफ इंटरनेट एंड स्मार्टफोन है. ये एक सॉफ्ट पावर की तरह है. इसका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है. ये बिहेवियरल उसको इम्पैक्ट करती है. ये इजीली एक्सेसिबल है और इसके लिए मतलब आपको कह सकते हैं कि कोई स्ट्रक्चर्ड एफर्ट करने की कई बार जरूरत नहीं पड़ती. और फेक न्यूज की बात तो है ही. तो कुछ एलिमेंट्स हम कह सकते हैं आपने ठीक कोशिश की, यू आर ऑन ट्रैक ट्राइंग टू ब्रिंग इट बेटर. और अच्छे एलिमेंट्स आ सकते हैं, वी विल जस्ट सी. मोस्ट सुटेबल एक्शन क्या हो सकता है? इंश्योर दैट वायलेंस इज कंटेन विद द हेल्प ऑफ पुलिस पर्सनल. सिर्फ पुलिस ही क्यों, आप लोकल कम्युनिटी, रिलीजियस लीडर्स, सोशल लीडर्स सबको लीजिए, सबको साथ लेके चलिए. ऑथेंटिसिटी ऑफ वीडियो के लिए फॉरेंसिक या फिर जो भी टेक्नोलॉजिकल या साइबर यूनिट है वो देखेगी. वो तो कमिटी आप बनाएंगे. उसके बाद एथिकल एंड रिस्पॉन्सिबल यूसेज ऑफ मीडिया एंड स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म. इसके लिए आप जो है आप कह सकते हैं अवेयरनेस कैंपेन और या फिर एक तरीके से वर्कशॉप्स कंडक्ट हो सकती हैं. लेकिन बहुत सेंसिटिव इशू होता है, ग्रास रूट लेवल के ऊपर बहुत मुश्किल होता है. तो लेट्स सी. जब हम देखते हैं स्टेक होल्डर्स इस केस में लेके आए, उन्होंने रिलीजियस कम्युनिटीज, फॉरेंसिक इंटेलिजेंस यूनिट, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, रश्मि, डीएम, एसडीएम, डीजीपी, आईजी, पॉलिटिकल लीडर सपोर्टर्स, इंटर रिलीजियस कम्युनल हार्मनी कमिटी, सोशल मीडिया, न्यूज एजेंसी. बाकी पॉलिटिकल पार्टीज कहाँ गई? वो भी तो स्टेक होल्डर है, वो नहीं आई. रिलीजियस लीडर्स जो है वो अगर आप स्टेक होल्डर बनाते हैं तो बाकी पॉलिटिकल कम्युनिटी को भी स्टेक होल्डर बनना चाहिए. तो बहुत अच्छी लाइन लिखी कि इट शोज एंगर टुवर्ड्स इंडिविजुअल, फंडामेंटल राइट है, एनिमिटी बता दी सेकंड पॉइंट में, नॉट डिफाइंड. तो इसमें भी एथिकल एलिमेंट मिसिंग है, जो थोड़ा एथिकल एस्पेक्ट आना चाहिए था. चलिए आगे, सोशल मीडिया पे चलिए आगे. तो हाई प्रॉक्सिमिटी है, अटैचमेंट विद सोशल मीडिया, टुडे जनरेशन मोबाइल कल्चर, लैक ऑफ प्रॉपर रेगुलेशन है. सोशल मीडिया पे रेगुलेशन है प्रॉपर, आप उसको कैसे कहेंगे वो देखने वाली बात है. सोशल मीडिया एज ए सोर्स ऑफ एंजॉयमेंट. और उसके बाद आपने वर्चुअल कनेक्टिविटी की बात की, तो उसको जोड़िए कि कैसे लोगों को भावनाओं में बहा देता है वो, कैसे लोगों को इंसाइट और एक्साइट कर सकता है, वो आपको लेके आना है. लॉ एंड ऑर्डर, बीटिंग सर्विस, पीसीआर, कंट्रोल रूम, मुखबिर, लोकल इंटेलिजेंस.
चलिए चलिए, पैरामिलिट्री, ड्रोन्स, इमीडिएट फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, वायरल वीडियो, सोशल मीडिया, इंटेलिजेंस कम्युनल हार्मनी यूनिट, इंटर रिलीजियस कम्युनल हार्मनी यूनिट। चलिए ठीक है, आई थिंक गुड पॉइंट्स, थोड़ा और स्ट्रक्चर टाइम के साथ इमर्ज होगा। फॉरेंसिक रिपोर्ट फाइंडिंग MLA गिल्टी, will prepare charge sheet, will submit this in judicial court after taking arrest of MLA। तो अच्छी बात है, लेकिन एथिक्स के उसमें अगर हम कई बार ये प्रोसीजरल डिटेल्स को हटा के एथिक्स के एलिमेंट पे फोकस करें तो स्कोर और भी बढ़ जाए। इन माई ड्यू कोर्स आई विल टाइमली सबमिट माई रिपोर्ट। यू हैव टू रिपोर्ट, देयर इज नो अदर ऑप्शन। यू हैव टू रिपोर्ट। सीनियर लाइक SSP, DGP, IG, DM will brief national media about investigation and the final outcome। आई थिंक स्ट्रक्चर बहुत अच्छा लिखा, कोशिश बहुत अच्छी की, वी कैन अप्रिशिएट दिस। अब हम देखते हैं कि इसमें इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटी, नेशनल मीडिया, citizens of my district, communal clash, okay, minority commission community, political leader, police and Rashmi। communal clashes, punitive, deterrent और सेंसिटिव हैंडलिंग होनी चाहिए। बहुत अच्छी लाइन लिखी शुरू में। चलिए, कम्युनल क्लैश, हेट स्पीच, और उसके बाद आपने डिविसिव लीडर की बात की। आपने हेट स्पीच को बताया अनरीजनेबल है, बहुत अच्छी बात है। अनएबिटेड यूज उसका फ्री स्पीच का उसके अंदर नहीं आएगा। और लिबर्टी ऑफ अदर्स को आप नहीं दबा सकते। नेगेटिव लिबर्टी, फ्री स्पीच, आई थिंक दिस इज लिटिल अप्रिशिएटेड। आर्टिकल 19 बता दिया। हेट स्पीच जनरल कंसेंसस है कि डेफिनेशन नहीं है उसका, कोई एक जनरल कंसेंसस जरूर है। जो भी एनिमिटी को प्रमोट करेगा या जो भी हमारे नेशनल इंटरेस्ट को हार्म करेगा, दैट कम्स अंडर हेट स्पीच। एथनिक, रिलीजियस या फिर इवन जेंडर बेस्ड भी हो सकता है। सोशल मीडिया स्ट्रॉन्ग इन इन्फ्लुएंस ओवर पीपल्स एक्शन एंड थॉट्स कम्स प्रिंसिपल ऑफ डोपामाइन रिलीज। इन्होंने प्रिंसिपल लेके आए। नैरेटिव है, उसके बाद उसका एक इंफॉर्मेशन बायस बन जाता है। सोशल मीडिया ग्रुप्स जो है वो एक सर्कुलर लूप क्रिएट करते हैं। आइडियोलॉजिकल आइडियाज को प्रमोट कर दिया जाता है। मोस्ट पीपल बिलीव दैट इंफॉर्मेशन वाया गूगल इज जेन्युइन। सो हैवी यूसेज ऑफ साइकोलॉजिकल टूल, मैनिपुलेटिव है, ये बात बिल्कुल सही है। सेल्फ रेगुलेटरी है, लेस पावर है, डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, लेकिन पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते। राइट फैक्ट और गुड न्यूज को प्रमोट करना पड़ेगा। सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन अगर लेने की बात करें तो स्मॉल डेडिकेटेड टीम बनाई जाएगी। जस्टिफिकेशन है कि उससे चांसेस हैं कि वो कंट्रोल में होगा। उसके बाद कोऑर्डिनेशन, DM और डिटेल इन्वेस्टिगेशन होगा। मेंटेनिंग जॉइंट एक्शन, चार्जशीट फाइल्ड बाय अगेंस्ट बोथ MLA एंड मिसक्रेंट स्प्रेडिंग वाइल डॉक्टर, ये जो डॉक्टर वीडियो है, शोकेसिंग प्रोएक्टिवनेस एंड ऑब्जेक्टिविटी। उसके बाद यूज ऑफ फोर्स टू कंटेन कम्युनल टेंशन, रेजिंग ट्रस्ट लेवल ऑफ सिटीजन्स, बिल्कुल सही बात है। सेंट रिपोर्ट टू हायर अथॉरिटीज। तो यानी कि अगर हम पिछली केस स्टडीज को देखें तो विद इन द सेम टाइम फ्रेम इस केस स्टडी ने थोड़ा और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच को हमें प्रेजेंट किया। नाउ व्हेन वी सी व्हाट मॉडल आर वी हैविंग और हम उससे क्या लर्न कर सकते हैं, तो आपने बताया कम्युनल क्लैशेस कैसे मिस यूज ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच और टेक्नोलॉजी की वजह से हो सकते हैं, जैसे डीप फेक्स। तो इससे सारी बात ही क्लियर हो गई पहली लाइन में। टॉलरेंस और सेकुलराइजेशन या सेकुलरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है और वो इंपैक्ट होता है गलत कारणों से। तो फ्री स्पीच प्रोटेक्टेड बाय अंडर आर्टिकल 19। व्यू पॉइंट वही जैसे हमने लिखा, यूज टू इंक्रीज अवेयरनेस, यूज टू क्रिएट डिसहार्मनी, हेल्प्स वॉइस डिसेंट इन डेमोक्रेसी, ये एलिमेंट अच्छा है। और ये जो हेल्प्स ब्रिंग अबाउट चेंज इन सोशल फैब्रिक बेस्ड ऑन कास्टिज्म कम्युनलिज्म। चलिए आगे। तो यानी ये जो लास्ट पॉइंट है कि फ्री स्पीच इंक्रीजेस टॉलरेंस एंड हेट स्पीच डिक्रीजेस पीस एंड टॉलरेंस, इतनी सिंपल लेवल तक हम चीज को लेके आ सकते हैं। चलिए आगे। सोशल मीडिया ने प्रोग्रेस किया है टाइम के साथ और उससे एक बेन भी है, बून भी है। वेरी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस कैसे? ईज ऑफ यूज, जैसे मैंने पहले आपको बोला। वेरी हाई मेंबरशिप, रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स, यानी रिकॉर्ड है, वो एविडेंस है, अकाउंटेबिलिटी है, इंक्रीज पार्टिसिपेशन है डिफरेंट स्टेक होल्डर्स का, और लोगों तक बहुत ही जल्दी पेनिट्रेशन है, बहुत ही जल्दी रीच है। तो जो स्पीच जो है वो रिकॉर्डेड होकर बहुत जल्दी पहुंचती है। फिजिकल स्पीच ऐसे नहीं हो पाती जैसे हम जो कर रहे हैं। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू सी कि इसका मल्टीपल लर्निंग हो सकती है। अगर मैं आपसे अभी फिजिकल में बोलने लगूं तो आपका आधा टाइम तो मैं क्या लिखूं और मेरा छूट गया, तो जो काम 1 साल में हो रहा है वो 5 साल में होगा। चलिए आगे। उसके बाद आपने बताया कि कैसे सुटेबल एक्शन की जब आप बात करते हैं, शॉर्ट टर्म मेजर्स और लॉन्ग टर्म मेजर में डिवाइड किया, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की, इंटरेक्शन स्टार्ट किया, सर्कुलेशन ऑफ वीडियो को रोका, लीडर के अगेंस्ट एक्शन लिया, लोकेट किया सोशल एंटी सोशल एलिमेंट्स को, इंटरेक्ट किया मीडिया के साथ। चलिए आगे। तो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इज ऑल्सो वन ऑफ द वेज, बट इससे पहले की ठीक। तो लॉन्ग टर्म सेंसिटाइजेशन, प्रिवेंट डेरोगेटरी स्टेटमेंट ऊपर करिए, और उसके बाद टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, क्रिएशन ऑफ लोकल ग्रुप, चलिए ऊपर करिए, प्रमोट प्लेटफॉर्म
for various communities. Thereafter, steps to be taken by me to maintain secularism as highlighted in the DPSP Fundamental Rights and Rights of the Citizen. So this is one of the good ways to approach and work on these lines. We will discuss the next one in the next episode. Thank you very much.